2 minutes are left. वीडियो की क्या जरूरत है, मैंने वैसे भी पूछा था आवाज आ रही है, मैंने ये थोड़ी पूछा था कि मैं दिख रही हूँ. घर पे प्रैक्टिस किया था नरेशन. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो या कुछ ना समझ में आया हो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो पूछ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंपरेटिव में. ठीक है. Today we will discuss imperative sentences, and on the later half we will be solving certain questions based on assertive, interrogative and imperative sentences. Okay. So see, if we talk about imperative sentences, तो हम सबको पता है कि imperative sentences क्या होता है ना? We guys are aware कि what are interrogative sentences, imperative sentences, I'm so sorry. So imperative sentences are basically ऐसे sentences जो किसी को कुछ request, command या फिर forbade या फिर suggest, instruct, order, plead, इसको जो words define करते हैं उसके लिए भी यूज imperative sentences है ना. अब जैसे कि आपने बोला कि switch off the light, switch on the fan, please bring me a glass of water, तो ये सब आपके imperative sentences है जिसमें आपका subject missing है ना. यहाँ पे subject नहीं है, directly sentences starts from a word. ठीक है. अब suppose कि मान लो मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिख दिया कि he said to me, please bring me. He said to me, please bring me a glass of water. ठीक है. Suppose this is a sentence कि he said to me, please bring me a glass of water. तो आप लोग इसको कैसे चेंज करोगे? How you will change it? बेटा ये जो said to है ना, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में said to asked बन जाता था, questioned बन जाता था. In a similar manner, imperative sentences में ये जो said to है, this changes to ordered. Yes, Himanshi, very good. Ordered, requested, commanded, forbade, suggested, instructed, etc. According to the need of the sentences, we used to change it. According to the need of the sentences, we used to change it. जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको प्लेस करोगे. ठीक है. तो सेट टू भैया इसमें चेंज हो जाएगा. अब क्या है कि तुम सबको पता है कि यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिपोर्टिंग वर्ब. And this part of sentences, which is in double inverted comma, this part of sentence is considered as reported speech. है ना. ये part of sentence क्या बन जाता है? ये part of sentence बन जाता है reported speech. Now the question arises that in assertive sentences we used to join this reporting verb and reported speech with that.
In interrogative sentences, we used to join this reporting verb and reported speech with if or whether. And if we talk about your WH words, so in that particular thing, we used to connect it with the WH word itself, which is mentioned in the sentences. So how we are gonna connect it in imperative sentences? So, bache, in imperative sentences, we use this word to, and with to, we use verb ka first form. Okay, tense and pronoun will change accordingly, but there is no change in tense generally because हम लोग ज्यादा यहाँ पे टेंस में चेंज करते नहीं है क्योंकि बेसिकली जो टेंस में चेंज होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ टू आ जा रहा है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो ये वैसे भी टू ब्रिंग हो जाता है. नो, क्लास स्टार्टेड एट 2, गरिमा. I think in timetable it was mentioned 2 to 3 only, so I started sharp at 2 o'clock. क्यों? क्या हो गया निमेश? क्यों दुखी हो तुम? भूख लगी है? भूख तो मुझे भी लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया. 3 बजे साथ में लंच कर लेंगे फिर. या कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, तुम चुपके चुपके खाते रहो और पढ़ते रहो स्पून से. सो अभी तक वैसे मैंने कुछ खास बताया नहीं है. आई नो अनिमेश, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट. what I was saying. तो अभी तक मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है. जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा, अभी तक मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है. बस ये करा है कि सेट टू के जगह पे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरबिड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड आ जाते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम 2+V1 फॉर्म को यूज करते हैं एंड प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंगली एज वी यूज्ड टू चेंज इन द प्रीवियस सेंटेंसेस. ओके, दैट इज इट दैट वी हैव डन टिल नाउ. ठीक है, अब आई एम गिविंग यू सर्टेन सेंटेंसेस विच यू विल सॉल्व, है ना. अभी मैं तुम लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो आप लोग सॉल्व करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द रूल्स विच आई हैव टोल्ड. ठीक है, सो फर्स्ट इज ही सेड call the accused in the court. बेटा अगर आप कमांडेड जो वर्ड है ना वो मोस्टली आर्मी टर्म्स में आता है. ठीक है, कि द सोल्जर्स कमांड, नहीं सॉरी, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स अटेंशन, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज. तो वो मोस्टली आर्मी टर्म्स में आता है. तो इफ पॉसिबल यूज इंस्ट्रक्टेड वर्ड, दैट विल बी मोर फीजिबल. ऑर्डर्ड यू कैन यूज, डोंट गो विद द वर्ड कमांडेड. ठीक है, my mother said. Solve these questions.
कौन इसका आंसर बता रहा है? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है. अनामिका गिव आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Anamika, give answer for question number 1. He ordered them to call the accused in the court. I just want to know, Prapti, them kahan se aaya? He ordered to call the accused in the court is okay, but why, how we are using them when it is not written in the sentence? Yes, Sanjeet. I was telling he ordered to call the accused in the court. Yeah, absolutely. He ordered to call the accused in the court. What about this question? She said, spread the clothes in sunlight and do not wash anything else. He instructed to spread the clothes in sunlight and do not wash anything else. She instructed to spread the clothes in sunlight and not to wash anything else. And yes, not to wash anything else. एब्सोल्युटली. यहाँ पे दो सेंटेंस है, स्प्रेड द क्लोथ्स इन सनलाइट और दूसरा सेंटेंस है डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इंडिविजुअली चेंज होगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स. ठीक है, एंड द लास्ट वन, माय मदर सेड हेल्प अदर. कोई बात नहीं, इट्स ओके. And the third one, my mother said, help others, but do not expect anything in return. My mother advised to help others, but not to expect anything in return. My mother advised to help others, but not to expect anything in return. And you can also say it like, my mother advised to help other and forbade to expect anything in return. Okay, so I hope the imperative sentences are clear to everyone. एक्सक्लामेटरी आज पढ़ाओ कि कल पढ़ाऊंगी? बताओ, तुम्हारी मर्जी है. मेरा मन है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें. अगर तुम चाहते हो तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ. मैम आज पढ़ा दीजिए, एक्सप्लेनेशन सेंटेंसेस भी कर लेंगे. ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कल, आज क्वेश्चंस कराइए मैम. सभी कह रहे हैं क्वेश्चंस कराइए. ठीक है, आज खाना खाना है. एक काम करो, तुम खाना खा लो. ठीक है, when everyone is saying for questions only, तो ठीक है, फिर we will do questions only. रितेश सब questions ही कह रहे हैं तो questions ही कर लेते हैं. क्वेश्चन करने का रूल है जो इन लोगों को पता है, हमारे 12 से 2 वाले बैच वाले बच्चों को पता है ना? जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ. 12 से 2 वाले बच्चे जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ. 5 क्वेश्चन का सेट होगा. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ऐसा चलेगा. आप अपने हिसाब से ऑप्शंस गिवन होंगे, यू चूज द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग 5 क्वेश्चंस आई विल गिव यू द आंसर एंड यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन गिवन बाय मी. और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन. कुछ भी आपको पूछना है तो आई एम हियर टू आंसर. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1. Done?
Good. Question number 2. Done? All these are previous year asked question. So we have completed the set of 5 question, है ना? 5 question का set हमारा complete हो गया है. Right or wrong? तो बोलो हाँ ना. Yes, ma'am. Okay. So answer for question number 1. In question number 1, it is कि sentence जो है वो indirect speech में है and we need to change it into indirect speech. हमें इसको indirect speech में change करना है. Now, it is they told us. हम बोल सकते हैं they told us, ठीक है, यहाँ कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, परफेक्ट. दैट तो हम लगाते नहीं है. They had waited. यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है. अगर हमें विथ ऑप्शन चूज करना है तब तो बहुत आसान है कि बेटा सब जगह वी लगा हुआ है तो यहाँ पर वी आएगा. और वी क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है ना. तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया. अब यहाँ लिखा है हैड वेटेड. अब पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है. अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं. देखो, सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट.
है ना। या फिर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो भी वो नो चेंज होता है, तो भी वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है। तो या तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस इन ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। गॉट द पॉइंट? कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ग्रेट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. Here it is based on imperative sentences which we have studied just now. The boss said to him, please tell me what the old man said today. Okay, first of all, today changes to that day, which we have already studied, है ना, कि today changes to that day. Now with respect to this one is incorrect and this one is incorrect. Okay, the boss requested him, the boss requested him, the boss requested him. Okay, to tell him, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बॉस के अकॉर्डिंग, तो वो हिम हो जाएगा. टू टेल हिम, टू टेल हिम. What the old man, what the old man, what the old man. ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. had said बस वन हमारा करेक्ट. ठीक है, यहां पर भी तुम्हारा राइट आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. Okay, now question number 3. The teacher said, tell me students, what have you learned from the lectures this week? Now this week will change to that week. Now question है, so the teacher asked the student, the teacher asked the student, the teacher asked the student. 3 हमारा eliminate हो गया. ठीक है. Now to tell him, बेटा तुम सबको पता है ना, मी जो है वो यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और ये हम सबको पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो बच्चे आप जान ले कि जब हमें टीचर का जेंडर नहीं पता होता तो हम उसको क्या मानते हैं? masculine. मैस्कुलिन. सो इट विल बी टू टेल हिम, है ना. अब ये क्या हो जाएगा? टू टेल हिम यहाँ पर आ गया, टू टेल हिम यहाँ पर आ गया. हैव लर्नड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू present perfect tense changes to past perfect. ठीक है. अब देख रहे हैं ये have learned है तो ये had में चेंज होगा. तो what they learned, what they had learned, ये भी गलत हो गया. 4 राइट आंसर है इसका. क्लियर? Now question number 4. The clerk said to the visitor, shall I ask these people to wait for you? Okay, the clerk asked the visitor if he, shall changes to should. ठीक है, तो if he should ask these changes to those people to wait for him. अदर सारे, अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो ना, तो ऐसे सॉल्व कर लो. ये डैट है, यहाँ पे गलत हो गया बेटा. यहाँ पे सेड है तो शैल यहाँ पे रहेगा नहीं, ये गलत है. ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी नहीं है, सिंपल पास्ट में भी नहीं है. तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बना सकते हैं? बस शैल का शुड हो जाता है. फर्स्ट तुम्हारा करेक्ट हो गया. ठीक है. लास्ट वन. रोहन सेड टू पेग, आर यू लिसनिंग, डोंट बी थिक. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और इंपरेटिव सेंटेंस भी है. तो रोहन आस्क्ड पेग इफ ही वाज लिसनिंग. इज लिसनिंग गलत. यहाँ पर ये WH वर्ड है नहीं, क्वेश्चन वर्ड है. अच्छा, यहाँ तो डैट है, ये भी तुम्हारा गलत. सो इफ ही वाज लिसनिंग एंड एडवाइज हिम नॉट टू बी थिक. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Got the point how to solve it with option elimination method. This is how it will come in the examination. Great. Now we'll solve next set of 5 questions. Okay, so I'm displaying question number 6 in front of you. 6 to 10 इस बार हम लोग solve करेंगे.
कोई तो बोलो डन यार, इसके लिए तुम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन 10 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया, इसके लिए 2 मिनट ले लिया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सोचो कोई तो बोलेगा अब हो गया मैम, आगे बढ़ाओ। The slides are not taking time to change. I am not changing it as you guys are not saying कि हाँ जी ये हो गया, तो तुम ही नहीं बता रहे हो तो मैं कैसे स्लाइड चेंज कर दूं बेटा। Done. So we have completed again set of 5 questions, right? है ना? बोलो। नहीं, 5 नहीं हुए, हो गए। Okay. So question number 6. My mother told me that I should listen to her first and then do anything as I pleased. Okay. अब इसको हमें किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच में। My mother said to me, you should listen to me first and then do anything as you please. क्या बात है? Option number 4 is absolutely right. Very good. Explanation की जरूरत है किसी को? किसी को explanation की जरूरत है या मैं आगे बढ़ूं? Good. The wayfarer said to me, do you know the way to the Asiad village? The wayfarer asked me if I knew. Very good. Since it is in you will change this according to me, so it will be I, and it is in simple present tense, it will change to simple past. So definitely right answer will be option number 2. Okay. He has just said my son will be back on Friday. Ma'am, too. He has just said that his son will be back on Friday. Absolutely right answer. Why? Because this part of sentence is in which tense? This part of sentence is in present perfect tense. And we guys have studied that if reporting verb is in present tense or future tense, अगर reporting verb प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता।
So definitely this will remain as it is. My will change according to his. So it is, he has just said that his son will be back on Friday. Very good. What about 10? The doctor advised the patients to give up smoking. The doctor said to the patient, You should. no. Right answer here is give up smoking. Beta advised the patient to give up smoking. Sentence is an imperative sentence. Sentence is an imperative, है ना? और imperative sentences में subject नहीं लगाती. ये जो है ये तुम्हारा assertive sentence है, जहाँ पर आप suggestion दे रहे हो. यहाँ पे give up smoking will be the right answer. Third is the right answer. Got it? Now, the last one. She said to me, "What can I do for you, dear?" Four. She asked me affectionately what she could do for me. Right answer will be option number 2. बेटा यहाँ WH word है. यहाँ पे WH word है. तो if या whether क्यों यूज करोगे? फिर तो WH word खुद ही कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है ना. तो right answer will be what she could do for me. ठीक है? क्लियर है? Okay. Now the next set of 5 questions. Let's start. अच्छा, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है. So this question we will leave, है ना? अभी हम लोगों ने exclamatory sentences किया नहीं है. Very good. Now, here. The teacher said to the boys, "Can you sit still and do your work?" Again, this is question of yes, no question. So,
Yeah. Right answer will be option number 4. I was confused between 1 and 4. क्योंकि देखो 1 and 4 में जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टोल्ड लिखा हुआ है, ये आस्क्ड लिखा हुआ है, और जब क्वेश्चन मार्क होता है तो वी यूज आस्क्ड, सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट चॉइस. ठीक है. He told पवन, हाँ बितांशु कुछ कह रहे हो आप? Okay. No, ma'am. No. Okay. So question number 12. He told Pawan that they should have tried harder. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? He said to Pawan, या he said Pawan, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. We should have tried harder will be the right answer. ये गलत है, ये गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है had tried, जो should के साथ मैच नहीं कर रहा. यहाँ पर लिखा है had tried, जो should के साथ मैच नहीं कर रहा. यहाँ पे लिखा है you, ठीक है, और यू होता तो पवन के अकॉर्डिंग चेंज करता, क्योंकि पवन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वहां पर ही होता, लेकिन यहाँ पर दे है, तो इस वजह से वी के साथ हम लोग जाएंगे एंड 1 विल बी द राइट आंसर. वेरी गुड गाइस. अच्छा ये हम लोगों ने स्किप कर दिया था. द मास्टर आस्क्ड द पीपल व्हाई दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर. द मास्टर सेड टू द पीपल, why do you prevent me from going near the tiger? ठीक है, why do you prevent me from going near the tiger? So what will be the right answer here? Option number 1. Yeah, but there should be a question mark, which I have put it like it was missing, है ना, missing term. Okay. Now, Mr. Rao told Mr. Mehta that we had to go to the town that day. That day है तो today हो जाएगा, तो ये गलत हो गया. Today कर दिया. Mr. Rao said, I have to go to the town today. Okay, but यहाँ पर Mr. Mehta missing है. Mr. Rao said Mr. Mehta, ये I will have होगा नहीं, 3 right answer. मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, मतलब फॉरवर्ड में गया है. Is that so? अभी अब दिख रहा है मैम. ठीक है. So it is Mr. Rao told Mr. Mehta that we had to go to the town that day. बेटा यहाँ पे that day है ना, तो वो जब डायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो वो टुडे हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया. had to go है तो यहाँ will तो आएगा नहीं, इस वजह से ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे फर्स्ट जो है इसमें मिस्टर मेहता मिसिंग है, इस वजह से ये गलत हो गया. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. ओके, स्लाइड्स आर रिफ्रेशिंग लेट. बस यही तक किया था ना हमने, Yes. Okay. So what is your score till here? 15 में से तुम लोगों ने कितने नंबर लाए हैं? 9, 10 ही सॉल्व किए, 15 हो चुका है अभी तक. 13, 15, 12, 11, 15, वेरी गुड. लेकिन बात यह है कि हमने 14 क्वेश्चन, हमने 14 ही क्वेश्चन किए, तो 14 में 15 कैसे आ सकते हैं, है ना. 12, 11, 13, चलो शुक्र है इसका पेट भरा हुआ है. हाँ जी, 14 इज ओके. 10, 13, गुड इनफ. हाँ जी, गुड है ना. सो डॉक्टर वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, गलतियां तो पार्ट एंड पार्ट क्या था, पार्ट ऑफ लाइफ है. ओके, सो सबको समझ में आ गया ना. क्वेश्चन सॉल्व करके आई गेस कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हाँ जी अब नरेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो वी विल बी एबल टू डू, है ना. आ गया होगा आई गेस इतना सबको.
वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड, कि ऐसा ना हो कि मैंने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा दिए और बच्चे ये फील कर रहे हो कि अरे भैया ये एग्जाम में आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमसे सॉल्व ही ना होने का। तो चलो, अब ऐसा नहीं है, यू गाइस आर वेरी मच अवेयर कि अगर असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, सो यू विल बी एबल टू डू इट। वेरी गुड। नाउ only 2 sentences are left now. First is your exclamatory. First is your exclamatory, and the last one is your optative. ठीक है, exclamatory बचा है और optative बचा है। Exclamatory sentences का basics मैं आज बता देती हूँ, and we will solve certain questions based on it. Not today. Let's see, time बचता है तो today, नहीं बचेगा तो tomorrow. अब मेरे सबसे पहले जो क्वेश्चन है फ्रॉम माय एंड टू द अदर स्टूडेंट्स, प्रोबेबली 12 से 2 वाले बच्चों को पता होगा बट 10 से 12 वाले बच्चों को नहीं पता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो, राइट, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो। बट मेरे हिसाब से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी 2 तरीके के होते हैं। कौन सा है वो 2 टाइप, बताओ। हाँ निवेश बताओ। करेक्ट। एक ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड अनिमेश। एक ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि ये है तुम्हारा हुर्रे वी वन द मैच। तो अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो हुर्रे वर्ड है इसका ग्रामेटिकली इस सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो हुर्रे वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। इसका ग्रामेटिकली इस सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका भाव, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर, वाओ, दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा यही हो गया कि इस प्लेस का जो ब्यूटी यहाँ पर डिफाइन हो रहा है इसका वाव से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भाव व्यक्त करने आया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, नहीं दिख रहा जो मैं लिख रही हूँ? You are now unmuted. दिख रहा है बट बहुत लेट आ रहा है स्क्रीन पे। And it's slightly blurred as well. Okay, give me a second. Let me ask technical team once if something can be done, and अगर तुम लोग comfortable हो तो we can proceed. अच्छा, नहीं तो एक बार
9. आवाज आ रही है क्या? दिख रहा है अब जो लिख रही हूँ? देखना। You are now unmuted. यस मैम, अभी सही है। अभी ठीक से दिख रहा है? पक्का? वाओ डिस्प्ले, हाँ या वाव डिस्प्ले। आज बच्चों को दिख रहा है वाव डिस्प्ले। ओके, वो नेट का सिर्फ नेट का फ्लक्चुएशन। तो क्या करूँ जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो रिफ्रेश करो। नेट का फ्लक्चुएशन होता है। बाहर से बंद कर देना प्लीज। अब ठीक है, चलो कैमरा ऑफ करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है? बस तुम लोगों को सही से दिख जाए, इतना ही जरूरी है। कुछ ऐसा सेंटेंस होगा बच्चे जिसमें ना ऐसा होगा कि जिसमें ना पूरा का पूरा सेंटेंस ही तुम्हारा एक्सक्लेमेशन में होगा, ठीक है? ये तो मैंने ऐसा बताया कि जिसमें तुम्हारे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं और वो जो एक्सप्रेशंस है उसका ग्रामेटिकली सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट देयर विल बी सर्टेन सेंटेंसेस जिसमें ऐसा होगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेशन में होगा। जैसे कि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या फिर समटाइम्स वी से एज हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो। रेनबो देखते हैं तो बड़ा खुश होकर हम चिल्ला देते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो, ठीक है? अब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चे, ये पूरा का पूरा एक्सक्लेमेशन में होते हैं, ठीक है? तो अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में है ना, तो वो आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। This will always be in simple present tense. हम यहाँ पर हमेशा is या simple present tense का कोई verb यूज करेंगे। Since ये sentences हमेशा simple present tense में होते हैं ना, तो जब हम इनको indirect speech में change करते हैं, we change it to simple past. इसमें ऐसा नहीं करते। ये वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में लिख लिख कर। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारा कोई सेंटेंस है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यही सेंटेंस है कि he said hurray we won the match, ठीक है? he said hurray we won the match। अब जब भी said प्लस hurray होगा तो आप उसको लिखोगे, एक सेकेंड, अगर मान लो said प्लस hurray है तो आप उसको लिखोगे exclaimed with joy, or you can also say it like exclaimed with happiness, ठीक है? अगर said प्लस कुछ और है, मतलब alas है, तो you will say it like exclaimed with sorrow। अगर said प्लस ओह है तो हम इसको दो टर्म में यूज करते हैं। ओ तो ये तुम्हारा सरप्राइज हो जाता है, ओ नो तो ये तुम्हारा रिग्रेट हो जाता है, ठीक है? अब जिस भी रेस्पेक्ट में तुम यूज करो, तुम लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली अगर मान लो सेड के साथ फाई, या फिर ये एक फाई एक्सप्रेशन है, या फिर लड़कियां मोस्टली देती है आह, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? अब ये जो एक्सप्रेशन है
this used to be like exclaimed with disgust. हाँ, kind of. अब देखो, अब ये ऐसा आ गया. अब ये जो तुम्हारा said प्लस हुर्रे है, इसको तुमने लिखा exclaimed with joy. अब उसके बाद आप that को ही as a conjunction यूज करोगे, और उसके बाद जो आप टेंस एंड प्रोनाउन चेंज करते हैं ना, वो टेंस एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंगली आप चेंज भी करोगे. टेंस एंड प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंगली इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस. ठीक है, बट अगर यहीं पर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका उसमें है, ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस ही अगर आपका उसमें है, पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका क्या बोल रही हूं मैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है, तो वहां पर प्रोनाउन तो चेंज होगा एज इट इज, बट टेंस ऐसा होगा कि वो सेंटेंसेस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सो इट विल ऑलवेज चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस. इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ में आई यहाँ तक? बेटा साई तो इट्स लाइक अ सेंस ऑफ I say sense of disappointment or sadness or tiredness. It's like this. SIGH. Is disgust and sigh is disappointment. हाँ, kind of. First type में ही आएगा. मैम इसका पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसका पीडीएफ तुम लोगों को मिल चुका है. नहीं मिला है मैम, वो सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस तक है. हाँ बेटा, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक ही मैंने पढ़ाया ना, अभी एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया नहीं गया इसलिए भेजा नहीं है. एक्सक्लेमेटरी का आज मिल जाएगा. ठीक है, आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन. अब अगर मान लो जैसे हम लोगों ने इसको चेंज किया, अब जैसे कि ये हम लोगों ने ये सेंटेंस है, अब ये मैंने तुम्हें रूल बताया, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो यू विल राइट इट एज ही एक्सक्लेम्ड with joy that. We will change according to he, so it will be that they had. Simple past tense changes to past perfect, so you will write it as they. Okay, they had won the match. ठीक है, so it will change like this. जहां पर आपका ये जो सेंटेंस है ये इंडिविजुअली चेंज होगा, क्योंकि इस एक्सक्लेमेशन का इस पर्टिकुलर सेंटेंस से ग्रामेटिकली कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, अब मैं तुम लोग को कुछ सेंटेंस देती हूँ, उसको जरा तुम लोग चेंज करना. विथ एक्साइटमेंट ऐड हो जाएगा ना, बस. नहीं, ब्रावो का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ना, इट्स नॉट कॉन्ग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस थोड़ी ना है ब्रावो. शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला. The coach said to me, शाबाश,
तुमने बहुत अच्छा खेला. So basically bravo is to give शाबाशी to anyone, है ना? बड़ा मजा आया ना तुम्हें, बड़ा मजा आया. चलो इस सेंटेंस को चेंज करो और एक और सेंटेंस है he said what a pleasant surprise, है ना? हम लोग ये दो सेंटेंस को चेंज करेंगे in indirect speech. बस उसके बाद we will leave the class because lag भी कर रहा है और तो इसको next class में फिर further देख लेंगे. First का आंसर what is according to you guys? शाबाशी है ब्रावो का मतलब, तो आप ब्रावो के लिए you can use the word applauded और praised. ठीक है, तो इसको ऐसे कर लोगे, the coach applauded और praised me, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. applauded me saying that, ये ब्रावो वाला एक्सेप्शनल केस था इसीलिए इसको अलग से पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे saying that अलग से यूज हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? The coach applauded me saying that. अब that के बाद तो तुम लोगों को पता ही है, you played well का ये साथ क्या करना है? You will change according to me, so it will be I played a simple past tense, so it will change to past perfect. So I had played well. The coach applauded me saying that I had played well. Had played तो होगा ना निमेश, और फिर applauded जब लिख दिया ना तो वहां पे told लगाने की जरूरत नहीं है, and told वहां पे डायरेक्टली कर दो saying that. ठीक है. Now he said what a pleasant surprise. तो इसको कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे he exclaimed. ठीक है, यहाँ पे लिखोगे he exclaimed. उसके बाद लिखा है what a pleasant surprise. यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे सेंटेंस में. ठीक है, that को तो आप as it is that लिख ही दोगे. अब यहाँ पर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है हमारे सेंटेंस में, लेकिन बात किसकी हो रही है? सरप्राइज की. तो सरप्राइज को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? नॉन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है. ठीक है ना? सो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट. नाउ I have already told you that what a pleasant surprise is in which tense? Simple present. So you need to change it into simple past. So you will do it was a pleasant surprise. Yes, Prapti, your answer is correct. He exclaimed that it was a pleasant surprise. That is how when the whole sentence is in exclamation, तो ये तरीका है जिसमें वो change होता है. ठीक है? He exclaimed that it was a pleasant surprise. Clear to everyone? किसी को कोई डाउट अभी तक? Okay. तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना. कल की क्लास में we will solve certain more questions based on this particular sentences, exclamatory sentences पे based certain questions we will solve in the next class. Okay, chalo, bye bye, take care.